एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है सुधीर कुमार ने, और थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतनी अच्छी ईमेल लिखी। और उन्होंने जो हमें वीडियो सजेस्ट की है उसका टाइटल है कर्नाटका टूरिज्म, और बेसिकली वो खुद भी बेंगलुरु से हैं। और हाँ, कर्नाटका टूरिज्म उन्होंने हमें सजेस्ट किया है। पहले भी हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें कर्नाटका वन स्टेट मैनी वर्ड्स। और उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। Wow. India is renowned the world over for its unity in diversity. And there is one state that exemplifies this par excellence. Don't say Kathak. One state that plays home to multiple worlds, thriving together in harmony. I think that was Italy. One state that has become a hotbed for tourism, because no matter what colors your world, you'll probably find it here in Karnataka. The film aims to capture the glory of the many worlds that call Karnataka home. From ancient history to breathtaking geography, from the Western Ghats to the Western coastline, from cultures that have stood for centuries to modern cosmocultures, from bustling metropolises to pristine nature, from a thriving economy to heartfelt hospitality. Whatever you seek, whatever your interests, there is something for everyone in Karnataka. Chariot banana. Some of the most powerful empires of ancient and medieval India thrived on this very soil. Monuments that pay tribute to the glory of these erstwhile empires are amongst the most popular historic attractions in the world. Hampi is one of the most sought-after destinations, with its UNESCO heritage tag and dating back over 500 years. While Badami and Pattarakal are glorious epitomes that date back over 1,000 years. The intricate workmanship of the Vijayanagar empires and the Chalukya dynasty can still be witnessed after all these centuries. Belur and Halebid are world famous too for its architecture, craftsmanship, and rich heritage. A fitting tribute to the Deccan style of architecture is the over 400-year-old Gol Gumbaz in Bijapur. 400 years. Like the largest monolithic statue of the Gomateshwara at Shravanabelagola, there are cultural and religious centers that still attract devotees from the world over. Talking of living history, the opulence of the Mysore Palace talks of a more recent past. In fact, the Mysore Palace gets the second highest footfalls when it comes to foreign tourists in India. Get transported to a world where kings and queens ruled, where history comes alive in a landscape that is bountiful. Talking of landscapes in what is the 7th largest state in India, the variety is nothing short of breathtaking. Nurtured by the nourishing waters of the Krishna or Bhadra and the Kaveri and their many tributaries that make for some of the most beautiful waterfalls in the country. Whether it's the sheer volume of the monsoon-fed Shivanasamudra or the defying heights of Jog Falls, they make for spellbinding views. No doubt. Talking of heights, Karnataka also plays home to the Western Ghats. The epic mountain range that runs north to south on the western half of the state, making for scenic beauty that is unparalleled.
The hill stations of Coorg and Chikmagalur, to name a few, are immensely popular for their locales, climate, and outdoor travel experiences for the discerning traveler. Considered one of the most biodiverse ecosystems in the planet, it boasts several endemic species of flora and fauna, and also plays home to 27 sanctuaries and 5 national parks. Being highly sought after for its large number of elephants and tigers. Nagarhole National Park, along with Bandipur, make for one of the largest tracts of unbroken forests in the country. Kabini has emerged as the most popular destination amongst wildlife enthusiasts. With a range of safari lodges, including several luxury and budget options, boat and jeep safaris, wildlife tourism in Karnataka has boomed over the last few years. With the mountains gently running into the Arabian Sea, Karnataka is also blessed with over 300 kilometers of pristine coastline. Beaches abound with sun, sand, and surf. It is a beachgoer's paradise. While Gokarna's own beach is the most iconic, there are plenty of quiet and mesmerizing beaches strewn along the coast. With adventure options slowly cropping up, whether you are seeking some adrenaline or solitude, Karnataka's geography has something for you. If your world is filled with colors, then there is plenty for you to see in Karnataka. Talking of plenty, if there is a city that is known for its plenitude, it has to be the capital Bengaluru. Not only was it voted the most dynamic city, but it has also been one of India's fastest growing cities for over a decade now. It is also amongst the most diverse cities in the country, thereby opening up many avenues within the city. Pub City, Culture City, Garden City, Silicon Valley of India, Education City, Art Capital, and many, many more. Bengaluru has become one of the most popular cities, not just in India, but in the world. Karnataka is paving the way forward to a melancholic tale of royalty with the Golden Chariot. A luxury train that indulges you with the best of Karnataka. From heritage festivals such as Dasera and the Mahamastakabhisheka that draw pious pilgrims from all around, to the latest music festivals that gather revelers, everything from ancient culture to modern marvels. There is one thread that holds everything together, no matter where you go in the state. And that is the heartfelt hospitality of its people, making for warm welcomes, hearty food, and everlasting memories. Dotted with a whole host of staying options, from luxury hotels to eco-resorts, from exotic homestays to budget accommodations. So whatever your budget, Karnataka will gladly welcome you. No matter where you call home, you cannot be too far away from reaching our shores. With one of the busiest airports, the International Airport at Bangalore is connected directly to Europe, UK, Asia, and even to the US. Direct international. With multiple airports, a large railway network, and an extensive road network, Karnataka is well connected within and to the outside world, with services ensuring that no matter what your destination, you will find it accessible. So the next time you plan a holiday, welcome to our world. Remember, this is but a glimpse of the many worlds that call Karnataka home. Maybe you'll discover your own, but for an unforgettable holiday, all you need to remember is one state, Karnataka.
बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका नो डाउट आज हमने जिस तरह वीडियो में देखा है, एक शॉर्ट सा डेमो था, लेकिन कर्नाटका बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा है। जिस तरह वहां पे चीजें हैं, ग्रीनरी, आपको कोस्टल लाइन देखने को मिलेगी, फिर वहां पर जिस तरह से मतलब माउंटेन्स, वाटरफॉल, मतलब सब कुछ है वहां पर देखने के लिए। आपको वहां पर कल्चर नजर आएंगे, वहां पर आपको हेरिटेज नजर आएगा। हाँ देखिए ना, मैं हर वीडियो में एक बात लाजिम कहता हूँ कि इंडियन स्टेट्स जितनी भी है ना, वहाँ के लोगों को दूसरी स्टेट्स में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, क्योंकि हर स्टेट में आपको क्या नाम लेते हैं, पहाड़ मिल जाते हैं, आपको जो है मैदान मिल जाते हैं, बड़े बड़े शहर, कल्चर, हिस्ट्री, सब चीजें वहां पर हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि अगर जैसे कि फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं ना इंडियंस, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ना एक स्टेट से निकलकर दूसरी स्टेट में चले जाना चाहिए। सही बात क्योंकि है। हाँ, क्योंकि इतना डिफरेंट आपको दिखने को मिलेगी चीजें कि जो अगर जैसे कि अगर हम कर्नाटका की बात करें तो इसकी खूबसूरती कुछ और तरह की है, ग्रीनरी, और फिर उसके साथ जैसे मैंने बोला वाटरफॉल, और आपको डिफरेंट बीचेस मिल रहे हैं, यानी कि आपको बिल्कुल एक फॉरेन आप कह लें कि आपको वाइब्स आएंगी वहां पर जाकर। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम राजस्थान चले जाते हैं, एक डिफरेंट स्टेट, रॉयल्टी नजर आएगी आपको। और फिर जैसे हम लोगों ने जोधपुर का भी देखा, वैसे जोधपुर से मुझे याद आया, थैंक यू सो मच, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि जो कल हम लोगों ने देखा था, हाँ जी, वहां पर विजिट किया जा सकता है, और उसकी टिकट आई थिंक 2100 या 1200 इतनी उसकी टिकट है, तो आप विजिट कर सकते हैं इसको। तो अब फाइनली हाँ, हम लोगों को भी हौसला हुआ कि अगर हम लोग वहां पे पहुंचे तो हम लोग ये विजिट कर सकते हैं। बट और इसके साथ मौसम एक और चीज, जैसे कि डांस का दिखा रहे थे बीच में, तो हम लोग क्योंकि हर मर्दवा एक ही बोलना शुरू कर देते, तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने हम लोगों को करेक्ट किया कि हर डांस कथक डांस नहीं होता। मुझे याद आया कि जो विद्या वॉक्स की हम लोगों ने वीडियो देखी थी, और उसमें जो डांस मॉडर्न पीछे किया जा रहा था उसको कथकली बोलते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने हमें कमेंट सेक्शन में ये बताया, थैंक यू सो मच कि आप लोग हम लोगों को अपडेट करते रहते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से डांस है, किस तरह की जो है चीजें हैं, नहीं है, सब कुछ आप जो हमें बताते हैं, उसके लिए तो हम वाकई बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कर्नाटका है वो जो है साउथ इंडिया में जो है सबसे बड़ी स्टेट है, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये इंडिया की 7वीं सबसे बड़ी स्टेट है। और अगर हम बात करें इसके कैपिटल की, तो वो सबको पता है बेंगलुरु है, और वो इसका लार्जेस्ट सिटी भी है। और कर्नाटका की बात की जाए तो ये वेस्ट से अरेबियन सी को, नॉर्थ वेस्ट से गोवा, नॉर्थ से महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट से तेलंगाना, ईस्ट से आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट में तमिलनाडु, और साउथ में केरला है, यानी कि ये बीच में ही है, सारी स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है। एंड इट इज द ओनली साउदर्न स्टेट जो कि कनेक्ट करता है बॉर्डर्स 4 साउदर्न इंडियन सिस्टर स्टेट्स को। और अगर इसकी जीडीपी की बात की जाए तो ये इंडिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी इसी स्टेट की है, जो कि 220 बिलियन डॉलर्स की है। और अगर इसकी जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो वो $2900 है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इस स्टेट का रैंक जो था वो 90th नंबर पर आता है, 19 नंबर पर आता है। और उसके अलावा अगर हम घूमने फिरने की बात करें तो हमने बहुत सारे जो हैं जो वीडियो में जो चीजें देखी जो यहाँ पे देखने वाली हैं, जिनमें जो है कई 1000 साल, कई 500 साल, कई 400 साल पुरानी है। हाँ। और लेकिन जो हमने यहाँ पे अब देखी है उनमें से एक मैसूर पैलेस है, जो कि मैंने देखते साथ ही पहचान लिया था कि मैसूर पैलेस है, क्योंकि उसकी मैंने बहुत देर पहले मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी। और मैसूर से हमारे जो दीपेश सर हैं वो भी बिलोंग करते हैं। और फिर है पत्रकाल से, अच्छा जो हम लोगों ने वर्ड पढ़ा तो हम लोगों को लगा कि शायद वहां पर जो दीवारों पर शायद कुछ राइटिंग में होता था। हाँ, पत्र मीन तो उसी तरह की मतलब ना, पत्र आई थिंक खत को बोलते हैं, पत्र वैसे खत को बोलते हैं। हाँ, पत्रकाल वैसे बोलते हैं, वो जर्नलिस्ट को भी बोला जाता है पत्रकाल। मतलब जो राइटिंग फॉर्म में भी वो उसको बोलते हैं, लेकिन आप जरूर बताइए कि इसका क्या मतलब हो। और उसके अलावा गोमतेश्वर स्टैचू है, जो कि वाकई में हमारे लिए बहुत डिफरेंट था। और वैसे मैं पहले इनके बारे में एक वीडियो देखी हुई थी, बट ये कि मुझे आइडिया नहीं है कि मतलब कि अगर मतलब टेम्पल स्टेच्यू किसके बारे में मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, बट ये कि हाँ मैंने इनसे रिलेटेड एक वीडियो पहले देखी हुई है। और इसके अलावा शिवनाथ मुद्रा फॉल्स जो कि बहुत खूबसूरत है, और बाकी में मुझे हर वाटरफॉल देखने के बाद ऐसे लगता है मौसम जैसे दूध आ रहा है, इतना व्हाइट कलर होता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि रियल लाइफ में अगर देखेंगे, वैसे मैंने पाकिस्तान के नॉर्दर्न साइड पर तो
वाटरफॉल्स देखे हैं, लेकिन वो इतने बड़े बड़े झरने मैंने नहीं देखे। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या वाकई में इतना वो लगता होगा कि रियल में भी कि इतना व्हाइट कलर है इनका। और फिर उसके अलावा हम लोगों ने उसके अलावा आता है गोल गुम्बद, और ये जो है किसी का मकबरा लग रहा था। गोल गुम्बद, उसका आर्किटेक्चर जो था वो भी बहुत यूनिक और डिफरेंट किस्म का उन्होंने बनाया हुआ था। अभी यहाँ पर एक डांस फॉर्म है जो कि काफी डिफिकल्ट मुझे लग रहा है, मतलब ये यक्षगाना डांस है आई थिंक। और साथ में एक टेम्पल है विरूपाक्षा टेम्पल। हाँ, ये विरूपाक्षा टेम्पल का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है दिखने में। और जो डांस फॉर्म है आई थिंक जो बीच में भी उन्होंने एक परफॉर्म कर रहे थे, मे बी वो यही वाला डांस हो। वैसे इस डांस में क्या डिफरेंट होता है आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि अब ये हो कि जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा डांस फॉर्म देखते जा रहे हैं, जैसे हम लोग कथक का हम लोग को पता चला, फिर उसके अलावा भरतनाट्यम, फिर कथकली के बारे में हम लोगों को पता चला, तो हम लोग इसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है या इसमें क्या ऐसी चीज बताई जाती है जो इसको दूसरों से डिफरेंट कर देती है। और यहाँ पर थोड़ी सी और हम आपको जानकारी देंगे। तो अगर हम बात करें इसके सॉन्ग की, तो इसका सॉन्ग है जय भारता जनरिया तनु जाते, और काफी मुश्किल है। अगर कोई गलती की हो तो मैं माफी मांगता हूं। है। और मैमल की बात करें तो वो इंडियन एलिफेंट है, जो हमने वीडियो में भी देखा। बिल्कुल। और अगर बर्ड की बात करें तो वो है इंडियन रोलर। ये वैसे मैं फर्स्ट टाइम इस बर्ड का मैंने सुना है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा, वीडियोस में भी नहीं देखा। रियल में की मैं बात कर रहा हूँ, वीडियोस की बात कर रहा हूँ। फ्लावर लोटस है। और ट्री की बात करें तो वो है सैंडलवुड। अच्छा, मैं कर्नाटका की एक बात करना चाहूंगी कि जो हम लोगों ने वीडियो देखी है और जिस तरीके से उसमें फॉरेस्ट दिखाए हैं, तो मेरा ख्याल में जो वाइल्ड लाइफ एडवेंचर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। क्योंकि वाकई में जिस तरीके से ऐसे एक इतना रिच ग्रीन जंगल और फिर बीच में पानी, और मतलब मुझे ऐसा लगता है ये चीजें हम लोगों ने सिर्फ फिल्मों की हद तक देखी हुई। और ये इस तरह के जो जंगल होते हैं ना, जब बारिश हो रही हो तो आप किसी यानी कि बोट में बैठे हो, कवर्ड बोट में, तो आपको वो जो ग्रीनरी होती है ना वो मजीद अच्छी लगती है। मुझे ना अब यहाँ पर बोट से ना मौसम वो वाला सीन याद आ गया जो वॉर मूवी में हम लोगों ने देखा था। वो कर्नाटका में था आई गेस, जिसमें वो मतलब एंड वाले सीन में जहर वाइन में मिलाकर शायद पिला रहे होते हैं। तो वो वाली बोट मुझे बहुत पसंद है। मैं उसी तरह की बोट की बात कर रहा था। मतलब बारिश हो रही हो, आप उस तरह की बोट में हो, कितना मजा है। सही बात है। और मैं सोचती हूँ कि उस टाइम पर जो आपको सुकून महसूस होता होगा और जो आपकी फीलिंग्स होती होंगी, मुझे लगता है कि आपका दिल करता होगा कि हम उन मोमेंट्स को ना कैद करके रखें। सही बात है। वेल, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। आप में से आई एम श्योर हमारे बहुत सारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते होंगे, या मतलब कि उनके जो अराउंड मतलब स्टेट्स कह रही हूँ, जो सिटीज हैं उनसे बिलोंग करते होंगे। हमें जरूर बताइएगा और अपने अपने शहर की खासियत भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ अब आपने हमारे वीडियोस, हमारे चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।